Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में 16 नवंबर के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की। अभी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा ये विजिट पर थे। 3 दिन की ये विजिट थी टू UAE। यहाँ पर इन्होंने एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एंड स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर बात की है, क्योंकि हम जानते हैं ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के भी, और ये 1 से लेके 3 नवंबर तक यहाँ पर थे। एंड जो मेन एम था वो क्या था, एजुकेशन एंड स्किल्स को बढ़ावा देने की। क्यों? क्योंकि जब हम यूथ को एजुकेशन और स्किल्स प्रोवाइड कराएंगे तो फिर ये आपका रेडी होंगे। जब भी कोई जॉब एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी आएगी तो उसके लिए रेडी रहेंगे। एंड जो इंडस्ट्री रिलेटेड स्किल्स हैं, जो आजकल इंडस्ट्री में प्रिवलेंट स्किल्स हैं, आने वाले टाइम में जिनकी डिमांड होगी, वो यहाँ पे प्रोवाइड कराने की बात की गई। फिर हमारी इंडिया की NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड इंटरनेशनल वर्कफोर्स मोबिलिटी के बीच में यहाँ पे MOU साइन हुआ, ताकि जो स्किल्स हैं वो प्रोवाइड कराई जाए लोगों को, एज वेल एज फिर यहीं पे जो गल्फ कॉरपोरेशन कंट्रीज हैं वहां पर हम अपने स्किल्ड लेबर्स को प्रोवाइड करा सकें। करेक्ट? तो मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, एन ओपन डाटा प्लेटफॉर्म टू मेक साइंटिफिक डाटा मोर असेसिबल वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी एक ओपन डाटा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया टू मेक साइंटिफिक डाटा मोर असेसिबल? तो वो लॉन्च किया गया था IAEA के द्वारा। IAEA क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, राइट? इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। प्लेटफॉर्म का नाम क्या रहेगा? वो है IAEA डाटा प्लेटफॉर्म। बेसिकली एम क्या है यहाँ पर, ताकि जो डाटा है ना वो बेटर प्रोवाइड कराया जा सके। डाटा बेटर प्रोवाइड कराया जाएगा तो जो रिजल्ट है, जो एनालिसिस होगा वो और अच्छे से हो सकेगा, राइट? उसको और अच्छे से एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनका एनालिसिस कर पाएंगे। एंड जैसा है कि ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के द्वारा रिलीज किया गया, तो जो मेन टॉपिक्स पे यहाँ पे डाटा प्रोवाइड कराया जाएगा वो क्या है? न्यूक्लियर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस, एंड उसके वेरिफिकेशन एंड सेफगार्डिंग के लिए। ठीक है? अगर IAEA की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे? वो है राफेल मैरियानो ग्रॉसी। हेडक्वार्टर रहेगा वियना ऑस्ट्रिया में, एंड इसको 1957 में इस्टेब्लिश किया गया था। यहीं पर अगर और कुछ करंट अफेयर्स डिस्कस करें, जैसे फॉर एग्जांपल अभी एयरबस ने किस IIT के साथ टाइप किया ताकि एरोस्पेस एजुकेशन पे वर्क किया जा सके, एरोस्पेस एजुकेशन पे वर्क किया जा सके, तो वो है IIT कानपुर। ठीक है? फिर इसी के साथ साथ बताओ, हरियाणा में अभी कितने PM श्री स्कूल्स को डेडिकेट किया जाएगा? तो 124 PM श्री स्कूल्स को यहाँ पे डेडिकेट किया जाएगा। करेक्ट? नेक्स्ट है BSNL।
बीएसएनएल ने अभी 1000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया टू नोकिया फॉर ओटीएन इक्विपमेंट। ओटीएन क्या होता है? ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। अब ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क क्या हुआ? जैसे आपकी ऑप्टिकल फाइबर होती है, राइट, ऑप्टिकल वायर्स होती हैं, तो ये किस लिए काम आती हैं? जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ये वर्क करती हैं। एंड इनका मेन एम क्या होता है कि डाटा को ट्रांसमिट करना, राइट। जैसे इंटरनेट का आपके वाईफाई घर पे होता है, तो उसमें वाईफाई जो केबल्स होती हैं वो ऑप्टिकल फाइबर होती हैं, एंड ये बहुत बेनिफिशियल होती हैं। रीज़न बीइंग क्यों? क्योंकि ये आपका डाटा लॉस नहीं होता है, इसमें डाटा लॉस ना के बराबर होता है बिकॉज ऑफ दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, तो इस ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के लिए इनके इक्विपमेंट्स को सप्लाई करने के लिए यहाँ पर बीएसएनएल ने कॉन्ट्रैक्ट दिया 1000 करोड़ रुपए का। किसको? नोकिया को। ठीक है, फिर वो पहली स्टेट कौन सी बनी जिसकी हर डिस्ट्रिक्ट में आपको हॉल मार्किंग सेंटर्स देखने को मिलेंगे? तो वो है केरला। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ बताओ इंडिया मोबाइल कांग्रेस अभी कौन सा एडिशन हुआ था इंडिया मोबाइल कांग्रेस का? तो 7th एडिशन हुआ था। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था? पीएम मोदी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। नेक्स्ट, हु वाज अवॉर्डेड विद द फर्स्ट एडिशन ऑफ लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड? तो फर्स्ट एडिशन या फिर हम बोले इनॉग्रल एडिशन था ये लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड का। किसको सम्मानित किया गया? सलमान रुशिद को यहाँ पे सम्मानित किया गया इस फर्स्ट एडिशन ऑफ लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से। ठीक है, फिर इसी को याद रखेंगे, ये इंडियन बॉर्न ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर हैं, इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया था। एंड मैनहट्टन न्यूयॉर्क यूएसए में इनको इससे सम्मानित करा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्विजिशन एंड मर्जर्स। अभी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड ये ट्रांसफर करेंगे 7.71% स्टेक को टू आईसीआईसीआई बैंक एज द पेमेंट ऑब्लिगेशन, राइट। और ये जो 7.71% का जो स्टेक रहेगा ना, ये आपका याद रखेंगे कितने के इक्वल है? 8.93 करोड़ शेयर्स के ये इक्वल रहेगा, करेक्ट। एंड ये जो 7.71% स्टेक है, इसकी वैल्यू कितनी है, वर्थ कितनी आ जाती है? 366 करोड़ रुपीस की करंट मार्केट प्राइस रहेगी इसकी। एंड ये इतने अमाउंट को 7.71% स्टेक को किसको डिलीवर करेंगे या फिर किसको ट्रांसफर करेंगे? टू आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज और, यहां पर जो ये जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड है, ये क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं लोन अमाउंट को टू आईसीआईसीआई बैंक? बिकॉज यहाँ पे जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड दे फेल टू रीपे अ लोन वर्थ 4258 करोड़ रुपीस, जिसका जो प्रिंसिपल सम था 1733 करोड़ रुपीस था, एंड बाकी 2525 करोड़ रुपए आपका इंटरेस्ट था। तो उसके लिए यहाँ पर ये अमाउंट की जा रही है पे। नेक्स्ट आ जाता है, सीसीआई ने क्लियर किया एक्विजिशन ऑफ माइनॉरिटी स्टेक इन शैडो फॉक्स टेक्नोलॉजीज बाय मिराई ग्रुप्स एंटिटीज। आई रिपीट, अभी रिसेंटली सीसीआई ने अप्रूव किया द एक्विजिशन ऑफ माइनॉरिटी स्टेक इन शैडो फॉक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। इनको टारगेट किया गया, मतलब ये एक्वायर होंगे किन के द्वारा? मिराई ग्रुप एंटिटीज के द्वारा, और ये एक्वायर है, मतलब ये एक्वायर करेंगे, राइट। फिर इसी के साथ साथ जरा बताओ, अभी रिसेंटली इंडिया का पहला लिक्विड नैनो डीएपी दैट इज डाई अमोनियम फॉस्फेट प्लांट को कहाँ सेटअप किया गया? गुजरात में। ठीक है, कहाँ पर? गुजरात में। फिर इंडिया का टारगेट क्या रहेगा 2030 तक? इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है? तो 2030 तक 143 लाख करोड़ की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी इन इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर अभी वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट हुआ था, कहाँ पर हुआ था ये इंडिया में हुआ था, इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया था, और इसका नाम क्या रहा था? भारत टेक्स। ठीक है, और सॉरी होगा, ये अभी हुआ नहीं था, ये होगा कब? 2024 में 26 से 29 फेब के बीच में, क्योंकि अगला साल आपका याद रखेंगे 2024 है, करेक्ट। एंड 26 से लेके 29 फेब तक ये कराया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने लॉन्च किया एक डैशबोर्ड ऑफ डीएसटी फॉर इफेक्टिव पार्लियामेंट बिजनेस। अब ये डैशबोर्ड क्या होता है? ये आपका रियल टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। यहीं पे आप देखेंगे इस डैशबोर्ड की मदद से जो आपका एनालिसिस हो सकता है डाटा का, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से होगा। जो डिसीजन मेकिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे डाटा प्रोवाइड कराया जाएगा, करेक्ट। एंड उस डाटा के एनालिसिस के बेसिस पे जो डिसीजंस होंगे वो और अच्छे डिसीजंस लिए जाएंगे। इसीलिए जितेंद्र सिंह के द्वारा ये डैशबोर्ड लॉन्च किया गया ऑफ डीएसटी। डीएसटी क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डैशबोर्ड फॉर रियल टाइम प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव पार्लियामेंट बिजनेसेस के लिए यहाँ पर आपका ये
डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया। ठीक है, मार्क करके चलना है इसको। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका ने अभी इंडिया को वीज़ा फ्री ट्रैवल प्रोवाइड कराया। श्रीलंका के साथ साथ थाईलैंड के द्वारा भी ये वीज़ा फ्री ट्रैवल प्रोवाइड कराने की बात की गई। थाईलैंड प्रोवाइड कराएगा नवंबर से लेकर जनवरी तक। ठीक, फिर FATF की जो ग्रे लिस्ट होती है, इसमें किस कंट्री को रिमूव कर दिया गया है FATF की ग्रे लिस्ट से? वो है केईमैन आइलैंड्स को यहाँ पे रिमूव कर दिया गया फ्रॉम FATF's ग्रे लिस्ट। नेक्स्ट याद रखेंगे DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, दैट इन्होंने अभी रिसेंटली ग्रांट किया जियो को एंड OneWeb को लाइसेंस, ताकि ये सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर सकें। अब ये जो लाइसेंस प्रोवाइड कराया गया ना इनको, उस लाइसेंस का नाम रहेगा GMPCS, ये लाइसेंस का नाम रहेगा। करेक्ट, ये क्या है? ग्लोबल GMPCS है आपका ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशंस बाय सैटेलाइट, राइट। ये आपका लाइसेंस है, इन दोनों को प्रोवाइड कराया गया ताकि ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करा सकें यूजिंग सैटेलाइट कनेक्शन। ठीक है, जियो को और OneWeb को। OneWeb की बात करें तो OneWeb ये UK बेस्ड कंपनी है एंड ये आपका क्या है, सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टलेशन सेटअप कर रही है अराउंड द ग्लोब ताकि इंटरनेट प्रोवाइड करा सके सैटेलाइट की मदद से। स्मॉल सैटेलाइट्स रहेंगी, जैसे आपका स्टारलिंक है, वो क्या काम कर रहा है? वो भी ये काम कर रहा है, एक कॉन्स्टलेशन बनाना है अर्थ के चारों तरफ ताकि उसकी मदद से इंटरनेट प्रोवाइड कराया जा सके। ठीक है, जैसे आप डिश टीवी की मदद से अपने टीवी के चैनल देखते हैं ना डिश पे, सिमिलरली आपका इंटरनेट भी ऐसे ही प्रोवाइड कराएगा। एक डिश आपकी छत पे लग जाएगी एंड सैटेलाइट की मदद से आप सीधा इंटरनेट कनेक्शन ले पाएंगे। नेक्स्ट, ICMR NIP। ICMR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड इनका आर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी। इनके द्वारा अभी रिसेंटली एक पोर्टल लॉन्च किया गया, दिशा पोर्टल। जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, दिशा मतलब डायरेक्शन बताना, तो ये दिशा पोर्टल उन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की दिशा लोकेशन प्रोवाइड कराएगा जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी भी पार्ट में आपके बॉडी के कोई आपको टेस्ट कराना है, फॉर एग्जांपल आपके फ्रैक्चर हो गया तो आपको कहीं जाके एक्सरे कराना है, तो आपके एरिया में आसपास कहाँ कहाँ एक्सरे होते हैं उसके लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए, उसकी लोकेशन प्रोवाइड कराने के लिए ये पोर्टल को लॉन्च किया गया जिसका नाम रहेगा दिशा, डायग्नोस्टिक सर्विसेज इन हेल्थ केयर अवेलेबिलिटी एंड जियो मैपिंग ऑफ लेबोरेटरी सर्विसेज इंडिया पोर्टल। इस पोर्टल को, इस वेबसाइट पे इसको लॉन्च किया गया एंड ये हेल्प करेगी जनरल पब्लिक को ताकि आइडेंटिफाई एंड लोकेट कर सके नियरेस्ट डायग्नोस्टिक हेल्थ फैसिलिटी को। करेक्ट, तो दिशा पोर्टल है और किसके द्वारा? ICMR NIP के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाता है फिर एनवायरनमेंट। अभी 2 नई स्पीशीज डिस्कवर की गई हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इनके आम का जो है सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। ये जो 2 नई स्पीशीज हैं ये शेयर फिश की स्पीशीज रहेंगी, इंडियन वाटर्स में इसको डिस्कवर किया गया एंड दिस डिस्कवरी ब्रिंग्स द टोटल नंबर ऑफ शेयर फिश स्पीशीज इन इंडियन वाटर्स टू 6 फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 4 स्पीशीज। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर स्पोर्ट्स के ऊपर। हम बात कर रहे हैं 37th नेशनल गेम्स की। कहाँ पर हुए थे? गोवा में हुए थे, राइट। हो चुके हैं ये एंड ये आपके 26 अक्टूबर से लेके 9 नवंबर तक ये गेम्स चले। मेडल टैली में टॉप किस स्टेट ने किया? महाराष्ट्र स्टेट ने यहाँ पे टॉप किया, 228 मेडल्स के साथ यहाँ पे टॉप किया, जिसमें से 80 गोल्ड, 69 सिल्वर एंड 79 ब्रॉन्ज मेडल रहेंगे। करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। और यहीं पे महाराष्ट्र ने राजा भालांद्रा सिंह ट्रॉफी को भी जीत लिया है। करेक्ट, इसी के साथ साथ अगर हम देखें महाराष्ट्र ने यहाँ पे टॉप किया, सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का 2nd पोजीशन, हरियाणा 3rd, मध्य प्रदेश 4th एंड केरला आपके 5th पोजीशन पे आया। यहीं पे अगर मैं बात करूँ बेस्ट मेल एथलीट की, वो कौन रहे? वो है श्रीहरि नटराज। करेक्ट, ये कहाँ से हैं? कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। कौन से स्पोर्ट खेलते हैं ये स्विमिंग से बिलोंग करते हैं और इन्होंने 10 मेडल यहाँ पर जीते। यहीं पे बेस्ट फीमेल एथलीट की अगर मैं बात करूं वो कौन रहेंगी? वो है जिम्नास्ट, जो है संयुक्ता प्रासेन काली, राइट। इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, जिम्नास्ट है, ठीक है। और इन्हीं के साथ एक और नाम याद रखेंगे, प्राणति नायक, ये ओडिशा से बिलोंग करती हैं। इन्होंने भी 5 मेडल जीते हैं और इन दोनों ने 5-5 मेडल जीते इन स्पोर्ट्स। और याद रखेंगे दोनों जिम्नास्ट हैं एंड दोनों ने 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता और ये दोनों बेस्ट फीमेल एथलीट रहेंगी यहाँ की। करेक्ट, नेक्स्ट पे आते हैं
ऑब्यूटरी की बात करें तो अभी सहारा इंडिया परिवार के जो फाउंडर एंड चेयरमैन थे सुब्रता रॉय, उनका रिसेंटली निधन हो गया। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। एक टाइम पे बहुत बड़ी कंपनी होती थी, लेकिन फिर इसके डाउनफॉल के बाद काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का पैसा भी यहाँ पर डूबा, लेकिन इनका निधन हो गया भी एट द एज ऑफ 75 ड्यू टू लॉन्ग इलनेस। एंड सहारा ग्रुप के ये चेयरमैन थे एंड फाउंडर थे। करेक्ट। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है पद्मा विभूषण अवॉर्डी PRS ओबरॉय। ये डॉयन ऑफ इंडियन हॉस्पिटैलिटी इनको बोला जाता है एंड इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। ये चेयरमैन थे ओबरॉय ग्रुप के एंड कौन? PRS ओबरॉय। 94 की एज में इनका निधन होगा। न्यू दिल्ली में इनका जन्म हुआ था 1929 में। करेक्ट। और इनको पद्मा विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है इन 2008। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड काइंडनेस डे। 13 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड काइंडनेस डे। एज द नेम सजेस्ट, काइंडनेस को प्रमोट करने के लिए, लोगों को और ज़्यादा काइंड होने के लिए ये डे एंकरेज करता है। एंड ये डे 26वां एडिशन था इस डे का। 13 नवंबर को ऑब्जर्व किया 2023 में। तो 2023 में कौन सा एडिशन था? 26वां नवंबर। और देयर इज अ थीम जो आप इसकी याद रखेंगे, बी काइंड वेयर एवर पॉसिबल। ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड काइंडनेस डे की। ठीक है। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? 1998 में वर्ल्ड काइंडनेस डे को ऑब्जर्व करा गया था। नेक्स्ट आता है फिर नेशनल चिल्ड्रंस डे। कब ऑब्जर्व करते हैं? 14 नवंबर को। एंड किस लिए ऑब्जर्व करते हैं इस चिल्ड्रंस डे को या बाल दिवस को? क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है आपकी चाचा नेहरू की, राइट? जवाहरलाल नेहरू जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। और जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया के। एंड 2023 में हमने 134th बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी चाचा नेहरू जी की, जिसको हम बोल सकते हैं, जिसको हम चिल्ड्रंस डे या फिर बाल दिवस के से भी ऑब्जर्व करते हैं 14 नवंबर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर। नेक्स्ट है इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस। कब ऑब्जर्व किया गया ये वीक? 6 से 12 नवंबर के बीच में ही हम ऑब्जर्व करते हैं। एक कैच है इसमें, क्या कि ये 11 नवंबर के बीच में वो वीक होना चाहिए जब हम इस डे को ऑब्जर्व करेंगे। वो आपका कभी भी हो सकता है, लेकिन उसमें 11 नवंबर जरूर आना चाहिए। तो इस बार 2023 में हमने 6 से लेके 12 नवंबर के बीच में ये वीक ऑब्जर्व किया, इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस। ठीक, तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पर। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ये 3 डे की विजिट पे थे टू UAE, फोकस्ड ऑन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। देन IAENA ये डाटा प्लेटफॉर्म है एंड इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया ओपन डाटा प्लेटफॉर्म टू मेक साइंटिफिक डाटा मोर असेसिबल। BSNL ने 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया नोकिया को फॉर OTN इक्विपमेंट। सलमान रुशिद इन्होंने रिसीव किया फर्स्ट एवर लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। देन जयप्रकाश एसोसिएट्स ने ट्रांसफर किया 7.71% इक्विटी टू ICICI बैंक एज देयर पेमेंट ऑब्लिगेशन। CCI ने क्लियर किया एक्विजिशन ऑफ माइनॉरिटी स्टेक इन शेडो फॉक्स टेक्नोलॉजीज बाय मिरर ग्रुप एंटिटीज। देन जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया एक डैशबोर्ड ऑफ DST फॉर इफेक्टिव पार्लियामेंट बिजनेस। DOT ने ग्रांट किया जियो को एंड वनवेब को लाइसेंस फॉर सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस कनेक्शन इन इंडिया। देन ICMR का आर्म NIP ने अनवेल किया दिशा पोर्टल, ताकि जो डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं उनकी लैब्स की उनकी लोकेशंस प्रोवाइड कराया जा सके जनरल पब्लिक को। ICR रिसर्चर्स ने डिस्कवर की 2 न्यू स्फीयर फिश स्पीशीज इन इंडियन वाटर्स। 37वें नेशनल गेम्स की बात करें गोवा में हुआ, महाराष्ट्र ने यहाँ पे टॉप गेन मेडल टैली विद 228 मेडल्स। सुब्रता रॉय फाउंडर एंड चेयरमैन है सहारा इंडिया के, इनका निधन हो गया। देन पद्मा विभूषण अवॉर्डी PRS ओबरॉय, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। वर्ल्ड काइंडनेस डे 13 नवंबर, चिल्ड्रंस डे या फिर बाल दिवस 14 नवंबर एंड इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस ऑब्जर्व किया जाता है 6 से 12 नवंबर के बीच में। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन करंट अफेयर्स पे, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे फॉर योर लर्निंग। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक कैंपेन की जो कि है जल दिवाली वीमेन फॉर वाटर फॉर वीमेन कैंपेन। यह भी लॉन्च किया गया किस मिनिस्ट्री के द्वारा? ये बेसिकली कैंपेन लॉन्च किया गया था ताकि वीमेन एम्पावरमेंट हो सके एक तो, और दूसरा वीमेन को यहाँ पे एम्पावर किया जा सके बाय टॉकिंग देम एंड बाय टेलिंग देम अबाउट द वेरियस प्रोसेसेस, जो कि आपकी वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस हो गई, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस हो गई, सेफ ड्रिंकिंग वाटर को कैसे ट्रीट किया जाता है आपके प्लांट्स में, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर उनको अवेयर कराने के लिए ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये जल दिवाली ये फर्स्ट फेज था आपका वाटर फॉर वीमेन फॉर वाटर कैंपेन का, जो कि 7 से लेके 9 नवंबर के बीच में हुआ था। करेक्ट। एंड यहीं पे याद रखेंगे अगर पूछा जाए कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। एंड ये आपका कैंपेन
अमृत स्कीम के अंडर लॉन्च किया गया था। और अमृत क्या है? अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स की ही ये फ्लैगशिप स्कीम रहेगी। ठीक है, तो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वाटर को सेफ बनाने के लिए, कैसे सेफ होता है, कैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर घर में आता है, कैसे वो ट्रीट किया जाता है, उस सब के ऊपर यहाँ पे वीमेंस को अवेयर कराने का काम किया गया। फिर यहीं पे याद रखेंगे ओडिशा अर्बन अकेडमी, ये नॉलेज पार्टनर थी ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंपेन, जो कि है जल दिवाली वीमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वीमेन कैंपेन की। नेक्स्ट बात करते हैं CFDA। CFDA क्या होता है? काउंसिल ऑफ फैशन डिजाइनर्स ऑफ अमेरिका फैशन आइकन अवार्ड 2023 से अभी किनको सम्मानित किया गया? वो है सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स एक टेनिस प्लेयर है, राइट? ये रिटायरमेंट ले चुकी हैं, करेक्ट। एंड ये वो पहली एथलीट बनी है, फर्स्ट एथलीट जिनको सम्मानित किया गया है CFDA अवार्ड से, काउंसिल ऑफ फैशन डिजाइनर्स ऑफ अमेरिका फैशन आइकन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। ये वो पहली एथलीट बनी। और याद रखेंगे इनको ये अवार्ड किम कार्दाशियन से सम्मानित किया गया था, जिनको 2022 में CFDA अवार्ड से सम्मानित करा गया था। ठीक, जैसे आपके ऑस्कर्स होते हैं, तो फैशन इंडस्ट्री का जो ऑस्कर अवार्ड माना जाता है वो CFDA अवार्ड ही माना जाता है। एंड इन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम वीमेन सिंगल टाइटल जीते हैं एंड 4 ओलंपिक गोल्ड मेडल भी सेरेना विलियम्स जीत चुकी हैं। विच एडिशन ऑफ अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन अभी न्यू दिल्ली में हुआ? कहाँ पर हुआ? लोकेशन पूछी जाए तो मानेकशॉ सेंटर, जो कि अभी न्यू दिल्ली में, वहाँ पर हमें ये अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन सेंटर देखने को मिला। फिर आ जाता है कौन सा एडिशन था इसका, क्वेश्चन तो यही है। तो 16वां एडिशन अभी हमें देखने को मिला आपके इस अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन सेंटर का। इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया गया था? इसको ऑर्गेनाइज कराया गया इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट विद DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। 27 से 29 अक्टूबर तक इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था और लोकेशन हम देख ही चुके हैं, मानेकशॉ सेंटर न्यू दिल्ली में। फिर ये जो इनॉग्रेट कराया गया था, किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट करा गया। और यहीं पर एक थीम याद रखेंगे, इसकी क्या थी? इंटीग्रेटेड एंड रेजिलियंट अर्बन ट्रांसपोर्ट, राइट? आई रिपीट, इंटीग्रेटेड एंड रेजिलियंट अर्बन ट्रांसपोर्ट, ये आपकी थीम रहेगी इस अर्बन मोबिलिटी एंड इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन की, जिसका 16वां एडिशन था मानेकशॉ सेंटर न्यू दिल्ली में, जिसका इवेंट हमें देखने को मिला। एक नई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब सेटअप करने की बात की गई एट AIIA। ये क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में इसको सेटअप करने की बात की गई। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कैंपस का है न्यू दिल्ली में। एंड अभी इसका 6ठा फाउंडेशन डे था, जो कि हमने 20 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया। इसी के दौरान ये नई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब लॉन्च करने की यहाँ पे बात की गई, करेक्ट? या इससे याद रखेंगे अ न्यू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब फॉर एडवांस रिसर्च एट AIIA, जो कि एक मैन्यूस्क्रिप्ट यूनिट है, एंड अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दक्षा, ये लॉन्च किए गए ड्यूरिंग द इवेंट। फिर याद रखेंगे AIIA इन्होंने भी MOU साइन किए हैं 6 इंस्टीट्यूशंस के साथ, ताकि यहाँ पे आगे बढ़ावा दिया जा सके इसको। ठीक है, इससे क्या होगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च की जाएगी, एंड ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च की जाएगी तो जो एंड प्रोडक्ट निकल के सामने आएगा वो और बेटर होगा। अगर बात करें AIIA के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, डायरेक्टर कौन है यहाँ पे? तनुजा निसारी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, एंड 2017 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, S&P ग्लोबल के द्वारा भी एक डाटा रिलीज किया गया, जिसमें बताया ये है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स डाटा। ठीक है, S&P ग्लोबल के द्वारा इसको रिलीज किया गया, और इस परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स डाटा के हिसाब से एक डाटा रिलीज किया गया, जिसमें बताया कि इंडिया एशिया का, या फिर इंडिया एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी बाय 2030, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। टॉप पर कौन रहेगा एशिया में? चाइना, फिर आ जाएगा हमारा इंडिया, राइट? और ये सरपास किसको करेंगे? हम सरपास कर देंगे जापान को, टू बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन एशिया बाय 2030। हम एशिया की बात कर रहे हैं, एशिया कॉन्टिनेंट की। अगर ग्लोबली देखें तो ग्लोबली USA टॉप पर है, फिर सेकेंड पे चाइना आ जाता है, राइट? और हम बोला जा रहा है कि 2030 तक हम इंडिया 3rd पोजीशन पे आ जाएगा, वर्ल्ड में 2nd पोजीशन पे आ जाएगा एशिया में। ठीक है, और जो इसकी GDP होगी ऑलमोस्ट $7.3 ट्रिलियन GDP होगी बाय 2030। और इसी के साथ साथ इस परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स में एक और फॉरकास्ट आया कि जो इंडिया की GDP ग्रो करेगी नेक्स्ट ईयर, वो 6.2 से 6.3% के बीच में रहेगी।
नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स में बात करेंगे हम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की। अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करें तो ये 16वां एडिशन था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का। किसके द्वारा जीता गया? पंजाब की टीम के द्वारा जीता गया। पंजाब की टीम ने किसको फाइनल्स में हराया? पंजाब की टीम्स ने बड़ौदा को फाइनल्स की टीम में हराया टू विन दिस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का 16वां एडिशन। और याद रखेंगे यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये आपके क्या रहेंगे? ये आपके स्पॉन्सर हैं इस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के। करेक्ट। इसका जो फाइनल्स हुआ था मोहाली पंजाब में हुआ। अगर बात की जाए यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच तो कौन रहेंगे? अनमोल प्रीत सिंह यहाँ पर जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं, ये आपके प्लेयर ऑफ द मैच रहेंगे। और अभिषेक शर्मा यहाँ पे प्लेयर ऑफ द सीरीज रहेंगे इन दिस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। चलिए, और याद रखेंगे ये 16वां एडिशन था और यहाँ पे पंजाब की टीम जो विनर रही 80 लाख रुपए इनकी टीम को यहाँ पर एज अ प्राइज मनी दिया जाएगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी पे। 8 नवंबर को हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी या फिर वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। करेक्ट। ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन है रेडियोलॉजिस्ट का टूवर्ड पेशेंट्स केयर एंड उसको इम्प्रूव करने के लिए, उससे जो भी हमारे हेल्थ से रिलेटेड जो भी आपका डाटा मिलता है, करेक्ट, एंड डॉक्टर्स को उसको पढ़ने में मदद आती है, उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है ये, राइट। इसीलिए ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं हर साल 8 नवंबर को। करेक्ट। पहली बार कब ऑब्जर्व किया, सॉरी, ये कौन सा डे था और पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? तो ये 12वां एडिशन था, याद रखेंगे, और पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 2012 में। नेक्स्ट, विच फाउंडेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड बाय ईपीएफओ? एंड इसी फाउंडेशन डे के सेलिब्रेशन के द्वारा भविष्य निधि अवार्ड्स, आई रिपीट, भविष्य निधि अवार्ड्स, ये भी यहाँ पे रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। करेक्ट। एंड जो ये इवेंट था कौन से फाउंडेशन डे का? 71st फाउंडेशन डे का ऑफ ईपीएफओ। ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया? लोकेशन क्या रहेगी? भारत मंडपम, जो कि न्यू दिल्ली में रहेगा। ठीक है, याद रखेंगे भविष्य निधि अवार्ड्स इसी 71st फाउंडेशन डे के दौरान ईपीएफओ के, जो कि है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, भारत मंडपम पे ये इवेंट हुआ। इसको वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया था, किसके द्वारा? भूपेंद्र यादव जी के द्वारा इसको वर्चुअली इनॉग्रेट करा गया था। ईपीएफओ की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर कौन रहेंगी? मिस नीलम शामी राव। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहेगा। और कब स्टैब्लिश किया गया ईपीएफओ को? 1952 में। अमित शाह हम जानते हैं होम मिनिस्टर है, इनके द्वारा भी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है इफ्को का नैनो डीएपी प्लांट। नैनो डीएपी क्या है? डाई अमोनियम फॉस्फेट, राइट। ये लिक्विड प्लांट रहेगा। कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? ये आपका कलोल गांधीनगर में इसको इनॉग्रेट करा गया है। 300 करोड़ की लागत से इसको बनाया जाएगा। लोकेशन कहाँ पे होगी? कलोल गांधीनगर गुजरात में। ठीक है। सेटअप किसके द्वारा किया गया है? इफ्को के द्वारा इसको सेटअप किया गया है। 300 करोड़ की लागत से इसको बनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के विजन के ऊपर ये आपका बेस रहेगा। एंड ये सेकंड इफ्को प्लांट है गुजरात में। एंड जो इससे पहले मई 2022 में पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था वर्ल्ड का पहला नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट, कहाँ पर? कलोल गांधीनगर गुजरात में। ठीक है। तो इफ्को के द्वारा सेटअप किया गया है। याद रखेंगे इफ्को के चेयरमैन कौन रहेंगे यहाँ पे? दिलीप सांघनी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और 1967 में इफ्को को इस्टेब्लिश करा गया था। इसी के साथ साथ कुछ और अगर करंट अफेयर्स देखें तो मेज कल्टीवेशन किस स्टेट के द्वारा प्रमोट की जा रही है अभी, या फिर किसके द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है? तो वो है ओडिशा स्टेट के द्वारा। वहाँ पर मेज कल्टीवेशन पे बात की जा रही है। देन प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर, क्योंकि नीलगिरी ताहर ही यहाँ का स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का। करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ ज़रा बताओ, अभी रिसेंटली धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, 2 चीज़ें लॉन्च की गई हैं, 2 चीज़ें इनॉग्रेट की गई हैं। एक तो है आपका वेब पोर्टल ऑफ अपना चंद्रयान, और दूसरा है इंडिया स्किल्स 2023 कॉम्पिटिशन या इंडिया स्किल्स कॉम्पिटिशन फॉर 2023। ये दोनों चीज़ लॉन्च की गई धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। फिर इसी के साथ साथ अभी G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास हैंडओवर की गई है? तो ब्राज़ील के पास। किस व्यक्ति ने हैंडओवर की P20 की प्रेसिडेंसी टू पार्लियामेंट ऑफ ब्राज़ील? तो वो है ओम बिरला जी ने हैंडओवर की टू ब्राज़ील, टू द पार्लियामेंट ऑफ ब्राज़ील। ठीक है। फिर इसी के साथ साथ ज़रा बताओ, अभी किस स्टेट का 4th एग्रीकल्चर रोड मैप लॉन्च किया गया? तो बिहार का 4th एग्रीकल्चर रोड मैप को लॉन्च किया गया है। फिर
डैश बिकेम कंट्री का फर्स्ट टू गेट ISO सर्टिफिकेशन। तो भोपाल का महिला थाना वो कंट्री का पहला थाना बन गया है जिसको। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉर्पोरेशन इन एनफोर्समेंट मैटर्स? तो थीम क्या रहेगी पहली ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉर्पोरेशन इन एनफोर्समेंट मैटर्स? तो क्या थीम रहेगी? वो है इट टेक्स अ नेटवर्क टू फाइट अ नेटवर्क। ये आपकी कॉन्फ्रेंस 30 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक हुई, ठीक। एंड इस कॉन्फ्रेंस को कहाँ पे कराया गया था? न्यू दिल्ली में। इनॉग्रेट किसके द्वारा कराई गई? निर्मला सीतारमन मैम के द्वारा इसको इनॉग्रेट कराई गई। एंड इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया गया था? ऑर्गेनाइज कराया गया था DRI के द्वारा। DRI क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। इनके द्वारा इसको कराया गया। अगर DRI के मैं डायरेक्टर जनरल की बात करूं, मोहन कुमार सिंह, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहेगा, ठीक है। इट टेक्स अ नेटवर्क टू फाइट अ नेटवर्क, ये आपकी थीम रहेगी पहली ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉर्पोरेशन इन एनफोर्समेंट मैटर्स की। नेक्स्ट है होमवर्क सेक्शन। पहला, विच सिटी मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ लाइटिंग 22.23 लाख अर्दन लैम्प्स ऑन द ईव ऑफ दिवाली? दूसरा, नॉलेज, हेल्थ केयर, इनोवेशन एंड रिसर्च सिटी। खीर सिटी इसका नाम दिया गया। अभी ये नई सिटी लॉन्च की गई है, इसको नया डेवलप करने का बात किया गया, किस स्टेट में बताइए। तीसरा, कार्लोस रोवेल्स, ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में थे, इज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन? और ये बताओ कार्लोस रोवेल्स न्यूज़ में भी क्यों थे? करेक्ट। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड। मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए। मैं देख रहा हूँ बहुत कम बच्चे यहाँ पे कमेंट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट कीजिए, राइट। आपके अंदर तो कंपटीशन होना चाहिए कि डेली बेसिस पे कौन कमेंट करेगा, कौन जल्दी कमेंट करेगा, कौन सही आंसर्स को कमेंट करेगा, राइट। तो ये कंपटीशन भी आप अंदर अपने डेवलप करोगे ना, तो चीज़ इंटरेस्टिंग रहेंगी। चीज़ इंटरेस्टिंग रहेंगी तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और चीज़ें सीखने में भी मजा आएगा। करंट अफेयर्स को रटो मत। करंट अफेयर्स को जितना समझोगे ना, जितना आसानी से वो समझ आएंगी आपको वो चीज़ें, उतना ईजी बना के उनको याद करो तो बहुत अच्छे से आपको चीज़ें याद रहेंगी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.